So there I was, sitting in front of the interview board, probably the most important day of my life, and waiting for my first question. So थोड़ा सा डरावना ही माहौल होता है, बट आपको खुद को समझाना है कि इट्स ओके, शांत रहना है, मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ, एक्सट्रीम्स अवॉइड करने हैं, हाइपर नहीं होना है, क्वेश्चन ठीक से सुनना है, एंड टेक अ ब्रीफ पॉज, एंड जो सही आंसर आपको लगता है ऑनेस्टली वो बताना है. द चेयरमैन लुक्ड एट मी एंड देयर वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. तो उन्होंने पूछा कि यू आर अ वेल एजुकेटेड पर्सन, यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट, सो व्हाई डिड यू चूज द सिविल सर्विसेज, व्हाई डिड यू गो फॉर द सिविल सर्विसेज. सो दिस वाज एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. मैंने प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट्स में देखा था कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी के लिए अपीयर करते हैं उनको ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है. सो आई वॉज काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड. मैंने अपना एक आंसर बना के रखा था और वही मैंने दिया. आई विल टेल यू मैंने क्या आंसर बनाया था इस क्वेश्चन के लिए. So I said, sir, there are both personal and professional reasons for this. Professionally, as a doctor, I believe that I am already contributing to the society, to the country, and I love my job. It is important to give an impression कि आप फ्रस्ट्रेट होके नहीं आ रहे हो, आपको पहले वाला जॉब पसंद नहीं है, आपको वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा था इसलिए आप स्विच कर रहे हो. ये सही रीज़न नहीं होता. आई टोल्ड देम ऑनेस्टली कि मुझे मेडिकल प्रोफेशन भी बहुत पसंद है. इनफैक्ट मैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाह रहा था. बट आई थिंक दैट ऑल्दो आई एम ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कंट्री इन अ स्मॉल वे, आई थिंक दैट इट हैज़ अ वेरी लिमिटेड impact, and that civil services can provide me a greater opportunity, a greater platform to contribute to the country and to the society. And this way I can grow in my career also, and I can play a larger role for the nation, for the country. I don't think there is any other career that provides such varied experiences and such a holistic view. And on a personal level, I said that I like to travel, to meet new people, learn new things, and I would like to bring best practices to India. And civil services would give me that opportunity to work at a larger level, at a global level. So that was my frank answer, and I thought कि ठीक है, मैंने honestly जो बताना था वो मैंने बता दिया. But then there was a follow-up question. Don't you think the government spends so much money on doctors, so this is a waste of government money when doctors come to civil services, considering the fact that there are so many, there is a shortage of doctors, especially in the rural areas. So I said, sir, I don't think I'll be wasting a medical seat. That might happen if I do not contribute to the healthcare sector overall in the long run. There are many health challenges in the country, and there are limited resources. As a doctor civil servant, I can help in the better planning and management of scarce healthcare resources. I realize that my responsibility towards the country is to improve the healthcare sector, and I'm not running away from it. In fact, I am just trying for a larger opportunity to contribute on a larger scale. I also said whatever I would have contributed as a doctor, I'll definitely be contributing more as a civil servant, and that includes contribution to the healthcare sector as well. Also bringing global best practices to healthcare, or using the wide experiences I will have as a civil servant to enrich medical education would ultimately benefit a medical profession as well. So this was the answer that I had kind of prepared, and the answer that I gave. Now this might not sound convincing, because there is a general perception कि डॉक्टर्स कम है, और है भी. I mean डॉक्टर पेशेंट रेशियो अगर हम देखें तो वो कम ही है. एंड जैसे दूसरे प्रोफेशन में लोग कह सकते हैं कि जॉब्स नहीं है इसलिए हम इधर आ रहे हैं, डॉक्टर्स कांट से दैट, बिकॉज देयर इज ऑलवेज दिस आंसर कि आप रूरल एरियाज में क्यों नहीं जा रहे फिर. बट वन शुड ऑल्सो कंसिडर कि
इतनी मेहनत से लोग डॉक्टर बनते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स गो थ्रू सच हार्डशिप्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर इनटू द मेडिकल फील्ड, देन टू सर्वाइव इट, बहुत डिफ़िकल्ट है. एंड ऑल्दो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग अ लॉट टू इम्प्रूव हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एंड रूरल एरियाज़ में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता. डॉक्टर्स फेस लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़, बिकॉज अगर आपके पास मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, डायग्नोस्टिक्स नहीं है, मेडिसिन्स नहीं है, तो आप कैसे ट्रीट कर पाओगे. एंड उसकी वजह से डॉक्टर्स ऑल्सो फेस देर आर थ्रेट्स टू देयर लाइफ, टू देयर वेलबींग. बहुत बार ऐसा देखा गया है कि डॉक्टर्स को भी हार्म किया जाता है, एंड मजबूरी में आके डॉक्टर्स हैव टू स्ट्राइक, एंड द सोसाइटी ब्लेम्स द डॉक्टर्स इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द सिस्टम, जिसकी वजह से डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किलें आ रही हैं. दैट बीइंग सेड, ये सारी चीज़ें हम इंटरव्यू में नहीं बता सकते, एंड आई थिंक द इंटरव्यू पैनल ऑल्सो नोज ऑल दीज थिंग्स. वो कोई कल पैदा थोड़ी हुए हैं, उनको भी पता है. वो उनमें से काफ़ी लोग खुद डॉक्टर्स हैं, एंड उनके बैचमेट्स भी डॉक्टर्स होते हैं, सो दे नो द होल थिंग. बट स्टिल दे आस्क टू सी कि जो कैंडिडेट आ रहा है उसका माइंडसेट क्या है. कहीं वो मेडिकल फील्ड की हार्डशिप्स से घबरा के तो सिविल सर्विसेज में नहीं आ रहा, बिकॉज सिविल सर्विसेज इटसेल्फ ब्रिंग्स लॉट ऑफ चैलेंजेस. तो अगर आपको ऐसे लगता है कि आपकी करंट पोजीशन में या करंट जॉब में बहुत तकलीफ़ें हैं, और एक बार आप सिविल सर्विसेज क्रैक कर लोगे तो सब अच्छा हो जाएगा, तो दिस इट कांट बी फादर अवे फ्रॉम ट्रूथ. So I think that is what the interview panel wants to check. That was the answer that I gave. And again, there was another question. The panel asked me, how will the civil services benefit? How can you contribute as a doctor? What qualities would you bring? So again, I said कि I will be wasting a seat if I don't put to use whatever I have learned as a doctor. एंड आई शुड बी जज्ड एट द एंड ऑफ माई करियर कि मैं डॉक्टर के तौर पे कितना कंट्रीब्यूट कर पाता, और मैं एक सिविल सर्वेंट, एक डिप्लोमेट के तौर पर कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ. डॉक्टर्स एज IAS कैन बेटर कंट्रीब्यूट टू हेल्थ केयर सिस्टम, टू हेल्थ केयर पॉलिसीज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन. दैट इज़ व्हाट आई बिलीव. ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा करें, ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो नॉन मेडिको बैकग्राउंड से IAS बने हुए हैं वो हेल्थ केयर सेक्टर इम्प्रूव नहीं कर रहे, ऐसा भी नहीं है. बट आई थिंक देर आर बेटर चांसेस अगर मेडिकल फील्ड से लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आए, बिकॉज दे नो द सिस्टम, दे नो द लूप होल्स. एंड जब डॉक्टर्स डिप्लोमैट्स बनते हैं तो देर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप. जैसे मैंने कहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोलैबोरेशन करवा सकते हैं कंट्रीज में. वी कैन ब्रिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन हेल्थ केयर सेक्टर टू इंडिया. वॉट इंडिया हैज़ टू ऑफर, लाइक योगा, आयुर्वेदा, ऑल दीज थिंग्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, traditional system of medicine, Ayush, plus the phenomenal work that Indian doctors are doing, the research that is going on, ये सब हम दुनिया तक ले जा सकते हैं. हम इंडिया का मेडिकल टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं. सो देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज जो एक डॉक्टर के तौर पे हम अगर करें तो आई थिंक वी कैन गेट बेटर रिजल्ट्स. Now I know that I'm justifying the whole thing, but I think this is the truth. Although कुछ लोगों को ये convincing नहीं लगेगा, लोगों को तो डॉक्टर्स को ब्लेम करना बड़ा आसान होता है, सॉफ्ट टारगेट्स लगते हैं, बट दिस इज़ द ट्रूथ, एंड मुझे यही ऑनेस्टली उनके सामने रखना था. दैट इज़ व्हाट आई सेड. एंड रिगार्डिंग क्वालिटीज एज अ डॉक्टर दैट आई कुड ब्रिंग टू द सिविल सर्विसेज, आई सेड दैट I could focus more on the preventive aspects and social determinants of health if I were to go into the Indian administrative service, that is. And if we implement these policies in a better way, health related policies, तो उसका impact दिखाई देगा. अगर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस बाहर से लाएंगे, अगर हम रिसर्च कोलैबोरेशन करवाएंगे, हमारे डॉक्टर्स और हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स का कोलैबोरेशन ज़्यादा होगा बाहर वाले इंस्टीट्यूट से, तो नेचुरली इट विल इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम. और अगर आप उस सिस्टम से नहीं हो, आपको मेडिकल सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है, तो आप बहुत ऊपर सुपरफिशियल लेवल पे पॉलिसीज़ के बारे में सोचोगे और वो इम्प्लीमेंट करवाओगे. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है.
ऑल्दो मैंने बहुत ही मॉडरेट स्टैंड लिया और बहुत ही मॉडरेट तरीके से, पोलाइट तरीके से उनको ये बात बताई. Then the next question was, I had written traveling as one of my hobbies in my DAF. जैसे मैंने कहा, मैंने कुछ बिना सोचे कुछ भी लिख दिया था उसमें. तो traveling, it's such a broad topic, तो उस पर तो वो कुछ भी पूछ सकते थे और उन्होंने पूछा भी. And the question was, if you are traveling from Kashmir to Kanyakumari, Jammu and Kashmir to Kanyakumari, which states would you cross? This is a basic geography question. सो मैंने थोड़ा सा पॉज लिया, सोचा, वो मैप, इंडिया का मैप मेरे दिमाग में आया. एंड देन आई सेड जम्मू एंड कश्मीर, एंड उसके बाद हिमाचल प्रदेश और ऐसे. एंड देन दे इंटरप्टेड मी. द चेयरमैन आस्क्ड कि हिमाचल प्रदेश क्यों, पंजाब से क्यों नहीं जाओगे? सो मैंने कहा ठीक है, बॉर्डर तो दोनों की लगती है, हम पंजाब से भी जा सकते हैं. तो दिस इज व्हाट आई थॉट एट दैट मोमेंट. देन ही आस्क्ड ओके, तो शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होगा, पंजाब से या हिमाचल से? आई जस्ट गॉट कन्फ्यूज्ड. मतलब एक ब्रॉड मैप तो मेरे सामने था, पर शॉर्टेस्ट रूट वुड बी थ्रू पंजाब और थ्रू हरियाणा. आई गॉट अ बिट कन्फ्यूज्ड. आई मेंटेन माई आंसर. मैंने पता नहीं क्यों मैंने हिमाचल ही कहा. तो सही या गलत उस टाइम पे, अब देखो रेट्रोस्पेक्टिवली मैं मैप देख के वहाँ से बता सकता हूँ. आप भी, अगर आप अभी पढ़ रहे होंगे, आप भी अभी आंसर दे रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं ये गलत था, ये बोलना चाहिए था वगैरह. बट उस मोमेंट पे दिस इज व्हाट केम टू माय माइंड और ये मैंने वहाँ बोला. सो देन दे आस्क मी नेम द फेमस ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम, वेयर डिड दे विजिट, व्हाट वेयर देयर फाइंडिंग्स अबाउट इंडिया. अब ये चीज़ें हम पढ़ते हैं, हम इन सब ट्रैवलर्स के बारे में जब हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तब पढ़ते हैं. बट उसकी रिवीजन मेंस के टाइम पे हो सकता है ना हो, क्योंकि दोज आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू रीड फॉर योर मेंस. एंड इंटरव्यू के टाइम पे तो ये एंटिसिपेट ही नहीं किया था मैंने कि ये पूछेंगे. सो जितना भी मुझे याद आ रहा था, वो सपोज देर आर लाइक 10 ट्रैवलर्स हु हैड कम टू इंडिया, तो उसमें से हो सकता है मुझे 4-5 के नाम याद आ रहे थे. तो मैंने वही नाम बताए और उनका कंट्रीब्यूशन बताया. एंड दैट्स इट. आई मीन सी, इट इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ हाउ मच यू नो, हाउ मेनी थिंग्स यू नो. इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमेंबर एवरीथिंग. तो जितना भी याद है उतना कॉन्फिडेंटली बोलो, और जो पता नहीं है you just take a pause and you convey it to them कि तुम्हें उतना ही पता है. ब्लफ करना या थोड़ा बहुत याद है वो बोल के फिर उसमें कुछ जुगाड़ करना या वहाँ से चीज़ें जोड़ना, ये मेंस तक तो चल जाएगा, मेंस में चल जाएगा. ये तुम लिख के आ सकते हो कुछ भी. इनफैक्ट वी रिकमेंड दैट कि पेपर ब्लैंक मत छोड़ो. बट इंटरव्यू में अलग स्ट्रैटेजी होती है, यहाँ ब्लफ नहीं करना है. आता है कॉन्फिडेंटली तो बोलना है. आई न्यू दैट देर आर मोर ट्रैवलर्स, बट मुझे उतना ही याद था तो मैंने उतना ही बताया. देन द सेकेंड मेंबर ही लुक्ड एट माई डैफ. उसमें उन्होंने देखा कि मुझे ऑर्फनेजेस, ब्लाइंड स्कूल्स, वहाँ जाके काम करना, वहाँ विजिट करना, ये मैंने किया है, ये मैंने लिखा था. और ऑनेस्टली मतलब इम्प्रेस करने के लिए नहीं, वो मैं करता था जब मैं दिल्ली में था. तो उन्होंने वो देखा, उन्होंने वो पूछा कि शुड ब्लाइंड और डेफ पीपल और पीपल विद डिसेबिलिटी, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, बी अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स. Suppose a blind person is appointed as a DM, will he be able to perform his duty efficiently? So now this is a trick question. Whether you are for it or against it, आपको इसमें वो फंसा सकते हैं. तो the most important thing is you should be convinced about your answer. आपके thoughts clear होने चाहिए. तो मैं ब्लाइंड स्कूल जाता था, मैंने देखा था कि उनके पास एक डिसएडवांटेज है, तो कुदरती तौर पे उनको किसी और चीज़ में भगवान या नेचर कॉम्पेंसेट करता है. दे हैव एक्सीलेंट टीम बिल्डिंग एबिलिटी, वो साथ में रहते हैं, साथ में सब काम करते हैं. देन उनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होती है. तो आई सेड दैट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ टीम प्लेयर. And whatever we are doing in whatever capacity in the government, we have to build a team, a good team, and work with the help of that team.
And what I've seen from my experience is that people with disabilities, especially ocular disabilities, जो blind people होते हैं, वो काफ़ी अच्छी, उनमें काफ़ी अच्छी टीम स्पिरिट होती है. I said that when such a person is a DM, he'll form a team and the team will play the role of his eyes. वो उनको बताएंगे और डिसीजन ब्रेन का काम the DM, the blind person can do. And that is how they can work as a team and perform efficiently. ज़रूरी नहीं है कि कोई ब्लाइंड पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एफिशिएंटली ना कर पाए. सो दैट इज़ व्हाट आई वाज कन्विंस्ड अबाउट. मैंने वही बोला कि एक टीम के तौर पे वो अच्छा काम कर सकते हैं. फिर भी उन्होंने पूछा कि अगर वो अकेले हो तो क्या, वो कैसे हैंडल कर पाएंगे, सपोज कोई राइट है या ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस में. सो सी, इवन आई अंडरस्टैंड कि such things are difficult, with disability there will be difficulties, but then I backed it up with with constitution, with the rights that people have. I told them that even our constitution, our laws give equal rights to people. We have special reservations for such people. This is not only to bring a sort of parity, but also to encourage them and to send a message to the society that अगर कोई if there is a divyangjan, if there is a person with a certain disability, that doesn't mean that he can't be a productive part of the society. And civil services तो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं. तो वहाँ पे तो हर सेक्शन से लोग होना, चाहे वो सोशली डिसएडवांटेज्ड हो, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड हो या फिजिकली डिसएडवांटेज्ड हो, इन सब सेक्शन से लोग होना बहुत ही ज़रूरी है. दिस इज़ व्हाट आई सेड. आई थॉट आई हैड गिवन गुड आंसर. जब आपका इंटरव्यू चल रहा होता है तो यू स्टार्ट एनालाइजिंग योर आंसर एज वेल. उसी दौरान आपके दिमाग में चीज़ें आ रही होती है कि ये मैंने क्या बोल दिया, या फिर ठीक है यार अच्छा आंसर दे दिया मैंने. बिकॉज यू हैव ओनली अ फ्यू सेकेंड्स जिसमें आपको आंसर देना होता है. जैसे मैंने कहा, लोगों का पेशेंस बहुत कम होता है, और स्पेशली इतने सीनियर लोगों का. दे आस्क यू अ क्वेश्चन, आपको 2-3 सेकेंड के बाद आंसर नहीं आया तो देन दे जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और तब आप सोच रहे होते हो, यू आर कमिंग अप विद अ गुड आंसर, एंड बाय द टाइम यू से इट वो दूसरे क्वेश्चन पे चले जाते हैं. सो व्हाट आई सजेस्ट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये आदत डालो कि आप हर क्वेश्चन के बाद एक छोटा सा ब्रीफ पॉज लेते हो, सोचते हो और फिर आंसर करते हो. एकदम से क्वेश्चन आते ही आंसर मत दो. टेक अ पॉज, अ ब्रीफ पॉज, एंड देन गिव एन आंसर. सिंपल क्वेश्चंस के लिए भी, सो दैट नेक्स्ट टाइम डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए जब आप पॉज लोगे, दे विल थिंक कि नहीं ये सोच के आंसर दे रहा है. इट ऑल्सो सेंड्स अ पॉजिटिव मैसेज कि ये ही इज नॉट, मतलब उतावला नहीं हो रहा कि जो मेरे दिमाग में है वो बोल दूँ बस. ही इज थिंकिंग, गिविंग इट अ थॉट, अ प्रॉपर थॉट, एंड देन गिविंग अ प्रॉपर रैशनल प्रैग्मेटिक आंसर. तो ये आदत उनको डालनी है. एंड लाइक आई सेड, कन्विंस्ड रहना है, खुद को कन्विंस्ड रहना है कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो मुझे सही लगता है. ठीक है, अगर आप कन्विंस्ड हो तो ही आप दूसरों को कन्विंस कर पाओगे. एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट द इंटरव्यू बोर्ड इज लुकिंग इन एस्पिरेंट्स. बट जैसे ही मैं थोड़ा सा खुश हो रहा था कि दिस वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड आई हैव काइंड ऑफ हैंडल्ड इट वेल, क्योंकि आपको उसी समय सोच के कुछ ठीक ठाक सा आंसर बना के बताना होता है विद इन अ फ्यू सेकेंड्स. तो मुझे लगा कि हाँ, आई हैव मैनेज्ड इट वेल. तो सेकंड मेंबर ने मुझसे तब पूछा, यू आर अ डॉक्टर, व्हाई आर यू जॉइनिंग सिविल सर्विसेज? एंड आई वाज लाइक, अभी 2 मिनट पहले ही तो मैंने इसका जवाब दिया था, इतना एलेबोरेट आंसर दिया था. बट देन ठीक है, अगर पूछा है तो अब नया आंसर थोड़ी दूंगा. वो जो मेरे दिमाग में था, जो मैंने प्रिपेयर किया था, जो ऑनेस्टली मैं सोचता हूँ वही बताऊंगा. वही चीज़ मैंने फिर दोहराई, वो उनको बताई. आई टोल्ड हिम द सेम थिंग्स. ही जस्ट नॉडेड. बोथ चेयरमैन एंड द सेकंड मेंबर, कोई एक्सप्रेशन नहीं. मतलब आंसर देने के बाद अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, एकदम पोकर फेस बना के बैठे हुए थे. तो आई कुडंट जज कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, कैसे आंसर्स दे रहा हूँ.
Then the third member started asking me about certain other things. अब डॉक्टर हूँ तो उस फील्ड से रिलेटेड तो पूछेंगे ही नेचुरली. दे आस्क मी अबाउट आयुष्मान भारत. कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं एंड समटाइम्स they just go into the details, ask the modalities कि किस तरीके से एक्चुअली इम्प्लीमेंट होगी, तुम क्या इसमें बेटर कर सकते हो, प्रोज एंड कॉन्स पूछते हैं. तो आई मीन जो मेंस में हम पढ़ते हैं उसी को पॉइंट वाइज थोड़ा सा बताना है वहाँ पे. डोंट गो इनटू द टू मच इनटू द डिटेल्स ऑफ वन थिंग, बट इट्स ऑलवेज गुड टू बैलेंस योर आंसर इन योर इंटरव्यू एज वेल कि ये अच्छी चीज़ें ये बुरी चीज़ें. अगर किसी सपोज एक किसी स्कीम के बारे में भी पूछा जाए या किसी इवेंट के बारे में, तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू यूज़ अ सैंडविच टेक्निक. मतलब अच्छी चीज़ें बताओ, बीच में एक दो अगर प्रॉब्लम्स तुम्हें बताने हैं ज़रूरी है तो बताओ, एंड एंड इट अप विथ अगेन ऑन अ पॉजिटिव नोट. तो ये थोड़ा एक बेटर टेक्निक रहती है, एक पॉजिटिव मैसेज सेंड करती है, ऑप्टिमिस्टिक मैसेज सेंड करती है. देन द थर्ड मेंबर, लाइक आई सेड, स्टार्टेड आस्किंग मी अबाउट आयुष्मान भारत. he asked me about my name also. he asked me कि सुयश का क्या मतलब होता है. तो ऑफ कोर्स आई न्यू इट, मैंने बताया उनको. तो उसमें भी उन्होंने क्वेश्चंस रेज किए कि ये नहीं, ये होता है. सुयश basically means success, right? And Yash is success, and Su stands for good in Sanskrit. So good success. तो good success का क्या मतलब होता है? I mean, if you see, तो ओसामा बिन लादेन जो है, that bloody terrorist, वो भी तो सक्सेसफुल हुआ था अपने इंटेंशन में. उसने उसको जो करना था उसने कर दिया वो, एंड दैट वाज आल्सो सक्सेस फॉर हिम. बट दैट इज नॉट गुड सक्सेस. सो देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड सक्सेस एंड बैड सक्सेस. सक्सेस फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी, फॉर अ लार्जर गुड, को सुयश कहते हैं. ऑफ कोर्स मैंने ओसामा बिन लादेन का एग्जाम्पल वहाँ नहीं दिया, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन. बट मैंने उनको दूसरे एग्जाम्पल्स दे के समझाने की कोशिश की. बट उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो इसका मीनिंग है ही नहीं, इसका मीनिंग कुछ और है. वो कुछ और बता रहे थे, मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे. एंड आई वाज लाइक, अब इनको मना करूं या समझाऊं फिर से? मेरा ही नाम है, इतने सालों से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मुझे पता है. बट वो मान नहीं रहे थे. तो मैंने कहा कि ठीक है सर, दिस कुड ऑल्सो बी अ मीनिंग. मुझे ये जितना मैंने पढ़ा है, पेरेंट्स से या एल्डर से सुना है, मुझे ये लगता था कि ये मीनिंग है, बट वो भी हो सकता है. देन अगेन दे आस्क मी अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन मेडिकल फील्ड. उसके बाद मुझसे ये पूछा गया कि डॉक्टर्स मिसडायग्नोज फ्रीक्वेंटली ड्यू टू विच पेशेंट सफ़र. तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो डॉक्टर्स होते हैं उनके बारे में पूछा. Then they asked me about some other hobbies. मैंने ड्राइंग एंड पेंटिंग हॉबी लिखी थी, तो उसके बारे में पूछा. बहुत बेसिक क्वेश्चंस लाइक ऑयल पेस्टल्स क्या होते हैं, तुम्हारी फेवरेट पेंटिंग कौन सी है, उसके डिटेल्स. एंड कभी कभी कुछ मेंबर्स एकदम कॉर्डियल लगते हैं वहाँ पे. वो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं. तो उस टाइम पे यू टेंड टू गेट अ बिट मोर रिलैक्स, जो कि अच्छा भी होता है क्योंकि टेंस इंटरव्यू चल रहा होता है और बीच में कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चंस जब आते हैं तो उस टाइम पे अच्छा लगता है. बट यू हैव टू रियलाइज कि आफ्टर एवरी क्वेश्चन थोड़ा सा एक टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिमाइंड योर सेल्फ, जो 2-3 चीज़ें मैंने पहले भी बताई, कि क्वेश्चन सुनना है, टेक अ पॉज, सोचो कि क्या आंसर हो सकता है और फिर बोलो. ये एकदम से नहीं होता, ये प्रैक्टिस के साथ ही आता है. मोस्ट एस्पिरेंट्स जंप ऑन टू देयर आंसर्स कि नहीं भाई मुझे ये आता है, पढ़ा है, मैं एकदम बोल दूंगा. होल्ड योर एंथुजियाज्म, थोड़ा सा रुको, आराम से आंसर करो. ना ज़्यादा एक्साइट होना है, ना ज़्यादा पैनिक में आना है. शांत बैठे रहो, फोकस ऑन योर ब्रेथ, दिमाग खुला रखो, क्वेश्चन सुनो और फिर आंसर करो.
मैं अभी ये सब बोल रहा हूँ, पर उस टाइम पे आपको मुझे देखना चाहिए था कि क्या कंडीशन थी मेरी. ऑल्दो आई वॉज ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ काम, बट दिस इज़ ऑल दिस इज़ ईजियर सेड देन डन. मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप पहले से अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, अगर थोड़ा सा डिस्कशंस में भी ये इम्प्लीमेंट करो, डोंट गेट वर्कड अप टू ईजिली. ज़्यादा एक्सट्रीम्स के बारे में नहीं बात करना है. तो इट हेल्प्स यू इन दी इंटरव्यू, इन दी पर्सनैलिटी टेस्ट एज वेल. एंड एज इट इज़ राइटली सेड, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी. आप अगर इस टाइप के हाइपर बंदे हो, एक्सट्रीम्स के बारे में सोचते हो, चाहे जो भी एक्सट्रीम हो, तो ऐसे लोग हमें एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं चाहिए. एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक द इंटरव्यू पैनल इज़ ऑल्सो चेकिंग. Moving on, there were some other questions. The third member also asked me the same thing. He said, you could have saved many lives as a doctor, as an administrator. You won't be able to save any life. So why do you want to be an administrator? So again I thought, पहले चेयरमैन को भी वही बोला, सेकंड मेंबर को भी वही बोला, अब थर्ड मेंबर ने भी मुझसे सिमिलर ही क्वेश्चन पूछा है. मेरे पास अलग अलग जवाब नहीं है. मैंने तो एक कॉम्प्रिहेंसिव जवाब बना के उनको बता दिया था. व्हाट शुड आई डू? बट वन थिंग केम टू माई माइंड एट दैट मोमेंट कि इंटरव्यू पैनल आपका टेम्परामेंट चेक करता है. ये चेक करता है कि कहीं आप गुस्सा तो नहीं कर रहे, कहीं आप आपके आंसर्स बदल तो नहीं रहे, प्रेशर में तो नहीं आ रहे. तो ये तो बताया जाता है ना, ऐसा हमें पता होता है. So I thought probably this is that process. So I gave him the same answer, emphasized on certain points based upon the question, so that it doesn't seem as if I am under pressure and I am, buckling under such, these people asking me the same question again and again, and me trying to, justify too hard. I was confident, I was calm. वही आंसर मैं, जो आंसर पहले दिया था वही आंसर मैंने इनको भी दिया. और ये भी ज़रूरी है कि आप जब किसी को आंसर कर रहे हो तो आप बाकी मेंबर्स को भी देखें, उनका भी थोड़ा सा रिएक्शन देख लें उस टाइम पे. हो सकता है इंटरव्यू पैनल में कुछ मेंबर ऐसे हो जो सटल जेस्चर्स से ये कन्वे, आई मीन नॉट इंटेंशनली, अनइंटेंशनली कन्वे कर रहे हो कि नहीं ठीक जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल कुछ मेंबर्स नॉड करते हैं, कुछ मेंबर्स थोड़े ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं. सम मेंबर्स काइंड ऑफ इग्नोर यू ड्यूरिंग द इंटरव्यू, उनका अपना ही कुछ चल रहा होता है. बट कुछ मेंबर्स ध्यान देते हैं. तो जब आप आंसर कर रहे हो, आप जब बाकी मेंबर्स को देखते हो तो उनके एक्सप्रेशन से आपको लगता है कि नहीं आप सही आंसर कर रहे हो. तो देयर वाज वन मेंबर हु वाज क्वाइट सीम्ड क्वाइट कोऑपरेटिव. तो मुझे जब जो ये थर्ड मेंबर था या थे, वो जब इस तरीके से ग्रिल कर रहे थे, उनके क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप के थे, और द वे ही वाज आस्किंग मी दोज क्वेश्चंस आल्सो सीम्ड अ बिट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मोमेंट आ रहा था उस टाइम पे. तो आई यूज्ड टू लुक एट द अदर मेंबर्स. तो जो थोड़े कोऑपरेटिव है उनका वो हेड नॉडिंग देख के भी लगता है कि नहीं ठीक है, हम सही आंसर कर रहे हैं. There was one question that this third member asked me. He asked me, if you did not have any previous plans of doing UPSC and you decided it later, don't you think you get swayed by others' opinion easily? See, again, these are the kind of questions that can put you in trouble. अब आपको तो पता है, आपने बहुत जंप किया है, करियर जंप्स लिए हैं, वो आपके लिए रिस्क था, आपने खुद भुगता है. आई मीन इट्स नॉट ईजी टू शिफ्ट करियर्स, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दैट पेन अगेन. बट अब ये इनको कौन समझाए? और जब उन्होंने ऐसे पूछा कि यू गेट स्वेड बाय अदर्स ओपिनियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वन गुड थिंग वाज आई वाज स्टिकिंग टू माय आंसर. तो उससे तो ये तो पता चलता है कि मैं अलग अलग आंसर नहीं दे रहा, आई एम नॉट गेटिंग स्वेड. But then I said, sir, I am open to others' opinions. I do consider their opinion, and then I myself decide what is right. ऐकावे जनाचे करावे मनाचे, असं म्हणतात मराठीत. ऐसी एक कहावत है मराठी में कि लोगों का सुनना चाहिए और फिर अपने दिल को जो सही लगे वो करना चाहिए, पर लोगों का सुनना चाहिए. So that is what I said. I said, sir, I am open to others' opinions. And I don't get swayed. I consider the opinion, and whatever is right, whatever I think is right,
I take those decisions. Now, I'm not saying this is how you should answer, या ये मैंने सही किया या गलत किया. उस टाइम पे मुझे जो सही लगा वो मैंने किया और वही मैं आपको बता रहा हूँ. दिस इज़ अ कैंडिड टॉक. मैं यहाँ कोई प्रवचन या ये करो वो करो, ऑल्दो आई एम गिविंग यू अ फ्यू टिप्स, बट ऐसे ही करो ऐसा ज़रूरी नहीं है. आई एम जस्ट टेलिंग यू ऐसी सिचुएशंस आती है, मैंने इसको ऐसे फेस किया था. नाउ कमिंग टू द फोर्थ मेंबर. The fourth member, interestingly, she was a lady, and she probably had visited orphanages. So she started asking me about that point. मैंने लिखा था ना उसमें orphanages वगैरह visit करता हूँ. So she asked me, don't you think orphanages are mismanaged? What were your findings at the orphanage? Are they managed properly? तो of course मैंने उसका आंसर दिया. I won't go into the details of every answer, but ये तो हमें पता होता है इस टाइप के क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं, हम रिपोर्ट्स भी पढ़ते हैं, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो उस बेसिस पे हमें बताना है. वी डोंट हैव टू क्रिएट अ रोजी पिक्चर, ठीक है. जो असलियत है, जो सामने है, वो बताना है. एंड में एक पॉजिटिव नोट पे किस टाइप की स्कीम्स से क्या फ़ायदा हो रहा है, अगर आपको पता है, अगर आपने वो देखा है तो बताना है. दिस इज़ नॉट, लाइक आई सेड, दिस इज़ नॉट अ मेन्स आंसर. सिर्फ स्कीम्स वहाँ बता के नहीं आना है. दे विश टू नो वेदर यू हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड इट. किया है तो ठीक, नहीं है तो जस्ट से कि ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन मैंने देखी है. देन द लेडी आस्क्ड मी, हैव यू विजिटेड एनी इंस्टीट्यूट फॉर द डिसेबल्ड एंड व्हाट वर योर ऑब्जर्वेशंस? Are they managed properly? On similar lines, but now she asked me whether there was a particular institute that I had visited. So incidentally I had visited blind school in Delhi. लोधी रोड के पास एक blind school है, वहाँ पे मैंने विजिट किया था. और भी schools हैं पर मैंने वो बताया. और हुआ ऐसे कि शायद उन्होंने भी वहाँ विजिट किया था. तो she asked me a very specific question कि उस blind school में प्रोडक्ट्स कहाँ मार्केट होते हैं, वो क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, और वो कहाँ मार्केट होते हैं. सिमिलर क्वेश्चन रिगार्डिंग एन ऑर्फनेज ऑल्सो. So I was so confused at that moment कि ये इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं कि किस जगह पे इस ऑर्फनेज के मार्केट किया जाता है वो प्रोडक्ट. सो मैंने प्रोडक्ट्स बताए, जैसे कैंडल्स हैं, बैग्स है, वो लोग बनाते हैं. बट देन आई सेड कि उसके पीछे वाली साइड एक उन्होंने स्पेशल सेक्शन बना रखा है. देन शी आस्क्ड मी द डिटेल्स ऑफ दैट पार्ट ऑल्सो. सो मैंने बताया. देन शी टोल्ड मी कि इवन शी हैड विजिटेड दीज प्लेसेस. वो भी जाती थी ब्लाइंड स्कूल में भी, ऑर्फनेज में भी, उन्होंने भी वो देखा है. एंड शी इज़ ग्लैड कि मैंने ये छोटी चीज़ें ऑब्जर्व की और सही तरीके से बताई. जस्ट इमेजिन अगर मैं ब्लफ करता वहाँ पे और अगर ऐसे ही बताता तो या तो एक अगर गलत चीज़ बताता तो निगेटिव इम्प्रेशन तो होता ही, इंटरव्यू तो वही ख़त्म हो जाना था. और अगर मैं ये कहता कि मैंने वो ऑब्जर्व नहीं किया, मुझे याद नहीं है, तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस आउट कर जाता. यू नो, दे वुड हैव गॉट द इम्प्रेशन कि वहाँ पे जाके जो इकोनॉमिक्स है उस इंस्टीट्यूट का, जो चीज़ें वो पॉजिटिव चीज़ें वो कर रहे हैं वहाँ पे, जो चीज़ें प्रोडक्टिव चीज़ें वो कर रहे हैं, बना रहे हैं, वही मैंने ऑब्जर्व नहीं किया. सो थैंकफुली आई हैड ऑब्जर्व्ड इट और वो मैं वहाँ पे बता पाया. उन्होंने भी वो देखा था तो शी अप्रिशिएटेड इट. बट इवन एट दैट मोमेंट आई थॉट कि थैंक गॉड मैंने वो देखा है और थैंक गॉड ये ब्लफ किया हुआ नहीं है. सो माई सजेशन इज, बस इम्प्रेस करने के लिए डैफ में कुछ भी मत लिखिए. अगर आपने सच में वो चीज़ की हुई हो तो लिखिएगा. एंड अगर आपके पास 1 साल है, अगर आप कुछ टाइम स्पेयर कर सकते हैं तो आप, इट इज़ स्टिल नॉट लेट, आप अभी भी जाके इन ऑर्फनेजेस को वगैरह विजिट करके वो देख सकते हैं एंड अपने डैफ में ये मेंशन कर सकते हैं. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट. इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट ने, इनफैक्ट हर सिटीज़न ने इन जगहों पे विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए कि कितने लकी है हम टू हैव एवरीथिंग. देयर आर पीपल जिनको इतनी मुश्किलें होती है और तब भी वो हार नहीं मानते, वो इतना स्ट्रगल करते हैं और फिर भी खुशी से एक एंथुजियाज्म के साथ अपनी लाइफ लीड करते हैं. ये देख के और भी अच्छा लगता है. हम इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के बारे में दुखी हो जाते हैं,
तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स को विजिट करके हमें भी एक जोश आता है कि अगर इतनी मुश्किलों के बावजूद इफ दीज पीपल, दीज दिव्यांगजन्स कैन लीड सच अ गुड लाइफ, दीज ऑर्फन्स हु डोंट हैव दैट सपोर्ट स्ट्रक्चर, they can think so positively, why can't we? And in fact I think हमें भगवान ने ये इतना सब दिया है ताकि हम इन सब की हेल्प कर सके, जो उतना लकी नहीं है जितना हम हैं। तो सब ने विजिट करना चाहिए और हेल्प करना चाहिए। आप जाएंगे वहाँ तो आपको जो पॉजिटिविटी मिलेगी, दैट विल हेल्प यू इन योर वर्क, आई मीन इवन इन योर स्टडीज़। डैफ वगैरह में हेल्प होगी, दैट इज़ एडिशनल बेनिफिट। बट सिर्फ डैफ के लिए मत जाइए, आप वो एक्सपीरियंस लेने के लिए जस्ट विजिट, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। दैट इज़ माई सजेशन। And then the fourth member asked me about NCC. I was a part of the NCC. I had written it in my DAF, and it was but natural that somebody would ask me about NCC as well. But the thing that she asked was, you are a part of the NCC, that means you have a liking for the men in uniform. Why didn't you give IPS as the first choice then? So now the thing is, जब हम DAF भरते हैं या जब हम ये चॉइसेस देते हैं, उस टाइम पे एक जनरल परसेप्शन ऐसा है कि सारी चॉइसेस भरनी चाहिए। जैसे आपको पहले IAS चाहिए, फिर IFS, फिर IPS, IRS, इस टाइप से, तब भी बाकी सर्विसेज भी लिख दो। उसका रीज़न ये बोलते हैं जनरली कि अगर उन सर्विसेज में से कोई पैनल मेंबर हो तो वो कहीं ऑफेंड ना हो जाए कि हमने उसकी सर्विस लिखी ही नहीं है, और ऐसा हो सकता है। बट जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, आई वॉन्टेड टू बिकम एन IAS। जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ IAS IPS ही देखने को मिलते हैं। डिप्लोमैट्स IFS के बारे में सुना ही नहीं होता। बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि IFS इज़ ऑल्सो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। इन फैक्ट फॉर मी आई थिंक दैट इज़ मोर सूटेड। और मैं वही रिकमेंड करता हूँ सबको कि आपको क्या सूट करता है वो देखिए। लोग जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं वो चाहे बेस्ट भी क्यों ना हो, पर आप कहाँ अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, आप कहाँ कंफर्टेबल रहेंगे। आप अगर आपकी चॉइस की सर्विस में हो तो आप कंट्री के लिए भी ज़्यादा आउटपुट दे पाओगे ना। सो इस तरीके से सोचना है। मैंने वैसे ही सोचा एंड एक इन्फॉर्म्ड चॉइस किया कि मुझे इंडियन फॉरेन सर्विस फर्स्ट प्रेफरेंस पे भरना है। एंड मुझे ऐसे लगता था कि बाकी सर्विसेज में मुझे रहना नहीं है, मेरा प्लान भी रेडी है, मैं वो करने लगूंगा इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी सरकारी नौकरी एज दे से। आपको सारे भरने हैं तो आप भरिए। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आपने भरना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उन सर्विसेज में से पैनल पे कोई हो, क्यों चांस लेना, क्यों उनको ऑफेंड करना। तो हमें बस सर्विसेज के नाम ही तो लिखने हैं, तो वैसा कीजिए। बट हैव दिस क्लैरिटी इन योर माइंड। और अगर मुझसे कोई पूछता भी वाई IFS के बारे में, या वाई हैव यू नॉट चोजन, से वाई हैव यू नॉट रिटन द अदर सर्विसेज, तो मैं ऑनेस्टली उनको बताता कि मैंने एक इन्फॉर्म्ड चॉइस किया है, मुझे यही चीज़ चाहिए, ये नहीं मिलती तो आई विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंट्री, टू द सोसाइटी इन माई करंट कैपेसिटी एज अ डॉक्टर और एज अ रिसर्चर। तो ये मेरे पास एक क्लैरिटी थी। बट नाउ द पैनल मेंबर इज आस्किंग मी कि तुमने IPS क्यों नहीं भरा। मुझे तो ये डर था कि कहीं वो IPS से ना हो, पुलिस वाले थोड़ा जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। तो आई हैड टू डिफेंड इट। तो मैंने वही चीज़ें कही कि अगर कोई IPS ले रहा है तो उसके दिमाग में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है, गो फॉर IAS। IFS, IPS बहुत ही स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हैं जहां आपको वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे फॉरेन सर्विस, मुझे उस टाइप का जॉब ही पसंद है, मुझे ग्लोबल लेवल पे काम करना है, मुझे जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, IR इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना मुझे पसंद है, एंड आई वुडंट माइंड ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरिंग, ऑल दोज थिंग्स, प्रोज एंड कॉन्स। वैसे ही पुलिस सर्विस का है, इट कांट बी अ कोइंसिडेंस। आई मीन आपको वो क्लैरिटी रहनी चाहिए कि ये जॉब एक टफ जॉब है, आप क्रिमिनल्स के साथ डील करोगे, लॉ लीगल चीज़ों के साथ डील करोगे, देर आर आपके वर्किंग आवर्स डिफिकल्ट होंगे, तो आप बाद में नहीं कंप्लेन कर सकते।
तो आपको इन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए. अगर आपको वो सूट नहीं करता तो मत लीजिए, बट मेक एन इन्फॉर्म चॉइस. तो आई हैड मेड एन इन्फॉर्म चॉइस, और इसमें गलत क्या है? तो मैंने वही चीज़ें बताई कि मुझे ऐसे लगता है उस लेवल पे एनसीसी में पार्टिसिपेट करना वॉज अ डिफरेंट थिंग, बट टू डू इट ऑल माई लाइफ आई हैव अ डिफरेंट टेम्परामेंट. शायद मैं वो सारी चीज़ें हैंडल ना कर पाऊँ उतने कामली. मैं शायद ज़्यादा गुस्सा करूँ, या होता है ना थोड़ा गर्म खून, उस टाइप से शायद मैं उतना सूटेड नहीं हूँ पुलिस सर्विस के लिए. तो हो सकता है जिस टाइप की लाइफ मैं खुद से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या जहाँ मैं कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ नॉट व्हाट द आईपीएस ऑफर्स. सो मैंने उसको नहीं लिखा. तो वी जस्ट हैव टू टेल देम कि हमने एक इन्फॉर्म चॉइस लिया है एंड वी हैव दैट क्लैरिटी. जस्ट बिकॉज वो एक ट्रेंड बना हुआ है, IAS IFS एट द टॉप, IPS IRS, फिर बाकी सारे, तो दिस इज रॉन्ग. आई मीन, make an informed choice and convey this to them. This is what I did, and I think she was convinced. Out of all the members, there were these two members on my that was sitting on my left seemed a bit more cooperative, a bit more, at least poker face nahi tha unka. I don't mean to offend anyone, but since itna freely baat kar rahe hain, to that was the truth कि इन दोनों ने थोड़ा सा अच्छा, इन दोनों की वाइब्स थोड़ी सी अच्छी थी. Then the fifth member asked me about Indian pharmaceutical industry and the influence that our pharma industry has, and he asked me, we do not find many new molecules or new research in the Indian pharma, so what is the reason? तो ये सारी चीज़ें I mean जो पता था वो मैंने बता दिया उनको. एक चीज मैं भूल गया. फोर्थ मेंबर एंड द फिफ्थ मेंबर, एवरी मेंबर आस्क्ड मी द सेम थिंग कि तुम डॉक्टर हो, तुम क्यों आ रहे हो, यू आर वेस्टिंग अ सीट, तुम वहां ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाते क्या. सो बाय देन आई हैड रियलाइज्ड कि ये दिस हैज नथिंग टू डू विद माय डिसीजन. दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट माय टेम्परामेंट. मुझे ग्रिल कर रहे हैं और देख रहे हैं कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूँ. आई मेंटेन द सेम स्टैंड कि मैं कंट्रीब्यूट करूंगा कंट्री को, सोसाइटी को. एज अ डॉक्टर जैसे कर सकता था उससे ज़्यादा ही करूँगा, उससे ज़्यादा मेहनत करूँगा. दैट्स व्हाट. और ऐसे होके फिर आफ्टर अबाउट 30-40 मिनट्स द इंटरव्यू फाइनली एंडेड. सो दिस वॉज माई एक्चुअल एक्सपीरियंस इन दैट रूम. शुरुआत में जब मैं गया था काफ़ी टेंस था, मैं खुद को समझा रहा था. Then there were periods when the stress levels were too high, जब ऐसा कोई stressful question आता था. फिर थोड़ा सा calm moment भी आता था जब light questions जैसे पेंटिंग के बारे में कभी पूछ लिया, या कभी हॉबीज़ वगैरह के बारे में questions जब होते हैं तब थोड़ा सा calm हो जाते हैं. तो ये सब within those 30 minutes ये सब होता रहता है. बीच में कोई आ जाता है इंटरव्यू के दौरान चाय समोसे बिस्किट्स लेके, फिर तुम्हारे क्वेश्चंस बाजू में रह जाते हैं, तुम आंसर कर रहे हो और बीच में ही कोई वो सर्व कर रहा है, वो खा रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे, तुम्हें लग रहा है कि तुम बोले जा रहे हो, कोई सुन भी रहा है या नहीं. तो ये सब चलता रहता है. दे ऑल्सो से कि तुम्हारा साइकोलॉजिकल या वैसे एनालिसिस होता है. आई डोंट नो, आई एम नॉट पर्टिकुलरली श्योर, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट. होता भी होगा. हमारे हाथ में क्या है, वी जस्ट हैव टू गिव आवर बेस्ट. हमें ऑनेस्ट रहना है, हमें कन्विंस्ड रहना है अपने आंसर्स के बारे में, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारे दिमाग में है, जो थॉट्स हैं, जो हमारी सोच है, वो प्रॉपर वर्ड्स में उन तक कन्वे हो पाए. अभी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये बहुत ही कैंडिड है. उस टाइम पे आई थिंक आई वॉज अ बिट मोर कॉन्शियस, अ बिट मोर पॉलिश्ड इन माई आंसर्स. आई वेड माई वर्ड्स, उनको प्रॉपरली यूज़ किया मैंने. वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो एंटिसिपेट किए थे उनके आंसर्स बना रखे थे मैंने, कुछ पॉइंटर्स बना रखे थे, उनके बेसिस पे मैंने आंसर किया. वो इंटरव्यू हो गया, अभी काफ़ी टाइम हो गया है, मैं एग्जैक्टली उन्हीं वर्ड्स में तो आपको नहीं बता पाऊंगा, बट आई हैव जस्ट गिवन यू अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ व्हाट दैट होल एक्सपीरियंस वाज अबाउट. So friends, finally the interview ended and I took a huge sigh of relief कि चलो ख़त्म हो गया. एक नम सी फीलिंग आ जाती है, इंटरव्यू के दौरान भी आती है और बाद में भी आती है, कि
समटाइम्स यू डोंट यू फील कि मैकेनिकली चीज़ें हो रही है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, आंसर्स दे रहे हो आप, और आप यू आर जस्ट नॉट इन दैट मोमेंट. द मोमेंट यू रियलाइज दैट, टेक अ डीप ब्रेथ एंड ब्रिंग योर सेल्फ बैक. ऐसा होता है, आई डोंट नो आप फेस करते हैं या नहीं, बट ऐसा हो सकता है. ब्रिंग योर सेल्फ बैक, बिकम कॉन्शियस ऑफ द मोमेंट, और एकदम सोच समझ के आंसर्स देने. एस्पिरेंट्स गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, आई रियलाइज दैट. ये जो यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे हेल्प करने की कोशिश करते हैं, वो इट इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ द रियलाइजेशन कि बहुत इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस. इट्स वर्थ इट, आई वुड से, बट सबको वो गाइडेंस नहीं मिल पाता, सबके पास वो रिसोर्सेस नहीं होते. एंड दैट इज व्हाट आई रियलाइज्ड इवन आफ्टर द इंटरव्यू, व्हेन आई केम बैक, व्हेन आई केम आउटसाइड, मैंने देखा कि देयर वाज अ ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट्स जो मेरे पास आ गए और मुझे घेर लिया उन्होंने. मैं पापा को ढूंढ रहा था कि डैड इतने टाइम से बाहर वेट कर रहे होंगे कि उनको जाके बताऊं कि ये चीज़ें हुई हैं, ये पूछा मुझे, मेडिकल फील्ड के ऊपर इतना ग्रिल किया, इतनी सारी चीज़ें मुझे बोलनी थी, इतना पढ़ा था, इतनी चीज़ें आती हैं, वो तो मुझे पूछा ही नहीं. मुझे बस डॉक्टर हो, यहाँ क्यों आए हो, वही पूछते रहे. ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था. एंड ये भी बताना था कि कुछ टफ क्वेश्चंस थे, आई थिंक आई हैव हैंडल्ड देम वेल, पता नहीं अब कैसे रिजल्ट आएगा. तो मैं ढूंढ रहा था, पर ये सारे स्टूडेंट्स आ गए एंड मैंने उनसे पूछा, तो दे हैड नॉट येट अपीयर्ड फॉर देयर प्रीलिम्स, पर वो मुझसे पूछने आए थे कि कैसा रहा इंटरव्यू. उस इंटरव्यू के बाद ये सेकंड इंटरव्यू ले रहे थे वो, एंड वो ये सब एस्पिरेंट्स के साथ, जो अंदर से बाहर आ रहे थे, उन सब के साथ ऐसा कर रहे थे. मैंने उनसे पूछा, सम ऑफ देम वर फ्रॉम द फ्रॉम द नेबरहुड, यूपी से थे, बिहार साइड से थे, झारखंड, राजस्थान साइड से भी थे, ऑल्सो फ्रॉम द साउथ. सो देन आई रियलाइज्ड कि आई मीन इन दैट मोमेंट, एक तो वो स्ट्रेस मेरे दिमाग से निकल गया था इंटरव्यू का कि जो होना है होगा, ख़त्म तो हो गया. बट दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरी तरह ही, जिनको वो अवेयरनेस नहीं होगी या अभी तक नहीं पहुंची होगी उन तक. अगर इनके घर में कोई उनको बताने वाला होता, उनका भाई, उनकी बहन, या उनका कोई फैमिली मेम्बर ऑफिसर होता, तो वो यहाँ क्यों आते, यहाँ इतनी देर इतनी धूप में क्यों वेट करते, क्यों हर एस्पिरेंट से ये सारी चीज़ें पूछते. और मैं ये भी बता दूं कि जो लोग एक एक स्टेप क्रॉस करते हैं ना यूपीएससी का, उनका ईगो भी एक एक स्टेप हाई होता जाता है. तो नॉट एवरीवन बट अ लॉट ऑफ देम, तो उनकी जो टेंडेंसी होती है हेल्प करने की, या उस ग्राउंड लेवल पे जाके एम्पथाइज करने की और उनको समझाने की, बताने की, वो उतनी ही कम होती जाती है. मेनी पीपल माइट नॉट एग्री, बट दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व. एंड देयर आर सम ऑफिसर्स जो अपनी वो जो मॉडेस्टी है वो बरकरार रखते हैं, वो हेल्प करते हैं. ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं. बट ये देखा है, वो उन स्टूडेंट्स ने भी मुझे कहा कि हम कब से खड़े हैं, हमें कोई अच्छे से बता नहीं रहा. तब तक उतने में पापा आ गए. पापा ने भी बोला कि उनकी इन बच्चों के साथ दोस्ती हो गई है, और उन्होंने पापा से प्रॉमिस ले रखा था कि जब आपका बेटा आएगा तो वो उन्हें बताएगा, गाइड करेगा. तो ये सब तो पसंद ही है मुझे. बाहर आया मैं, उन्होंने पूछा, हमने साथ में जूस वगैरह पिया, मैंने उनको समझाया कि ऐसे प्रोसेस होती है, ये करो वगैरह वगैरह. आई मीन इन शॉर्ट, अच्छा इंटरेक्शन रहा. इनफैक्ट मैं अब तब किसको पता होता है कि मैं ऑफिसर बनूंगा या नहीं, मतलब किस बात की चौड़ रखना ना उस टाइम पे. जितना मुझे पता था मैंने उनको बता दिया. मुझे ये भी नहीं पता था कि रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा, मैं ऑफिसर बनूंगा या फिर वही जीमैट, एमबीए, मेडिकल फील्ड वही करता रहूँगा. वो वहाँ पे उनको बताया. एंड इंटरेस्टिंगली बाद में मुझे उनमें से कुछ लोगों के मैसेजेस भी आए कि हो सकता है उन्होंने मेरा नाम उस टाइम पे नोट ना किया हो, या उन्होंने देखा ना हो मेरा रिजल्ट वगैरह. बट काफ़ी दिन बाद उनका मैसेज आया कि वी आर सो एंड सो, एंड हम मिले थे, हमने बहुत सर्च किया, तो आप मतलब वी गॉट टू नो कि आप फॉरेन सर्विस में हो.
और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि उस टाइम के वो लोगों ने मैसेज किया। तो that's it. I mean, this was the whole experience of my interview personality test. I know ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है. It has become a very long video. And when I had started today in the evening before sunset, I had thought कि एक छोटा सा वीडियो बनाता हूँ so that अभी जो इंटरव्यू आ रहे हैं पर्सनालिटी टेस्ट जिनकी है उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए, या जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा they should get an insight into what the entire process is like. But बातें करते करते काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है. प्लीज़ डोंट माइंड. आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस. देखिए कैसे प्रिपेयर करना है उसके तो काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगे. मैं खुद भी बताता रहता हूँ आपके जो डाउट्स हैं जब भी मुझे टाइम मिले. बट आई थिंक एक्चुअल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जो अब बीती होती है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, छोटे छोटे पैनिक्स, छोटे छोटे द काइंड ऑफ जुगाड्स दैट यू फाइंड आउट एंड द थिंग्स दैट गो इन योर हार्ट, जब ये आप कन्वे करते हो, एस्पिरेंट्स फील कि ठीक है जो उनके साथ हो रहा है वो नॉर्मल है. आई मीन इट इज़ ओके टू फील दैट वे. It's okay to make some mistakes. It's okay to, feel vulnerable at times. It's okay to be intimidated at times. It is important to convey this message. नहीं तो बहुत से लोग ये जर्नी छोड़ देते हैं पहले ही, क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं होता. So इंटेंशन यही है कि इस चैनल में हमारा जो ये YouTube चैनल है या जहाँ भी हम गाइड कर रहे हैं, we can't guide people full time of course, क्योंकि जॉब का इतना स्ट्रेस रहता है एंड ऑल. बट जब भी हम गाइड करें तो इट शुड बी एन ऑनेस्ट टॉक, अ कैंडिड टॉक, जिससे लोगों को पता चले कि एक्चुअल प्रिपरेशन टाइम में क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए. सो आई जस्ट होप आपको ये यूज़फुल लगे. आगे भी जब मुझे टाइम मिलेगा आई विल बी शेयरिंग मोर सच एक्सपीरियंसेस. देयर आर सो मेनी एक्सपीरियंसेस. इतनी एनरिचिंग जर्नी होती है यूपीएससी की, प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग टाइम. एंड अभी आफ्टर आई हैव कम, आई हैव जॉइंड इंडियन फॉरेन सर्विस, लाइफ हैज़ चेंज्ड कम्प्लीटली. उसके मैं अलग से व्लॉग्स बनाने वाला हूँ. कुछ थोड़े से बन भी चुके हैं. आई हैव टू फिनिश देम. And I'll be sharing my experiences. Indian Foreign Service is a fantastic service, unparalleled experiences, and I want people to know about it. Of course, there are many things that we can't disclose, but whatever can come in public domain and whatever should be there, I'll be making vlogs. I'll be telling you the kind of opportunities, experiences that I'm having over here. And I hope you like them. Friends, इतने बड़े डिटेल्ड वीडियोस हमेशा बनाना पॉसिबल नहीं होता because of workload, but I try to stay connected with you all on my social media channels, on my Twitter, on Instagram, through Quora. Please connect with me. If you are there, if you are asking your questions, it might so happen that you may not get reply immediately, but I try to reply whenever I find time. मैं अपने एक्सपीरियंसेस वहाँ पे शेयर करता हूँ, तो उसकी वजह से अगर आपको अच्छा लगता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है या कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मुझे अच्छा लगेगा उससे. एंड हम बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स ला रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन फॉरेन सर्विस. कुछ मैं पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ या प्रपोज कर रहा हूँ. I want you all to be a part of that journey. So please connect with me on Twitter, Instagram, Facebook and all these social media channels. And please keep supporting. I hope you find all these initiatives interesting and useful. Thank you. Jai Hind.